جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خدا خدا praise God praise the Lord hallelujah تیری تعریف تیری ستائش و عزیز ہم تیرے شکر گزار ہیں اے باپ برکت کے لیے تیری رحمتوں کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں آسمان praise God آئیے خدا کا پاک اور زندہ کلام ضرور آسمان کے وسیلہ سے سنتے ہیں جیسس ہاللیلویا Thank you, God. پانی اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے جس نے زندہ امید کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ غیر فانی اور بیدان اور لازوال میراث کو حاصل کریں اس کی تمجید ابدالآباد تک ہوتی رہے آمین کل اور پرسوں ہم نے متی کی انجیل اس کے 24 باب کی تفسیر کی جس میں بہت سی باتوں کو سیکھا آج ہم متی کی انجیل کا 25واں باب جو 24 باب کا حصہ ہے بنیادی طور پر 25 باب 24 باب کا حصہ ہی ہے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی پہلی آیت یہاں پر اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کواریوں کی مانند ہوگی خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں کون داخل ہوں گے اور کون داخل نہیں ہوں گے جب ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز انہی الفاظ سے کیا تھا توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یوحنا نے بھی یہی منادی کی توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے نیکودیموں سے یسوع مسیح نے مل کر یہی اسے سکھایا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تو یسوع مسیح نے بہت ساری تمثیلیں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے رسولوں کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تمثیلوں میں کلام کیا اور تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی سکھائی کہ آسمان کی بادشاہی کس طرح کی ہوگی کون سے لوگ اس میں داخل ہوں گے اور کون سے لوگ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے آج یسوع مسیح 25 باب کی پہلی آیت میں 10 کنواریوں سے ایک تمثیل شروع کرتے ہیں پھر آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو جو اپنی مشعلیں لے کر دلہے کے استقبال کو نکلی ان میں 5 بیوقوف ان میں ان 10 کنواریوں میں 5 بیوقوف کنواریاں ہیں اور 5 عقلمند تھی اور 5 عقلمند کنواریاں ہیں جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مشعلیں تو لے لی ہاں جو 5 تھی انہوں نے بیوقوف جو تھی انہوں نے اپنی مشعلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ لیکن اپنے ساتھ تیل نہیں لیا ہے مگر عقلمندوں نے اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کوپیوں میں تیل بھی لے لیا عقلمندوں کی عقلمندی یہ ہے کہ اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کوپیوں میں تیل بھی لے لیا ہے اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی جب دلہا نے دیر لگائی تو دونوں گروپ سو گئے ہیں دونوں ہی گروپ کے لوگ عقلمند بھی اور بیوقوف بھی دونوں اس 10 کے 10 ہی سو گئے ہیں آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو دلہا آ گیا آدھی رات کو دھوم مچ گئی کہ دیکھو دلہا
आ गया है। उसके इस्तकबाल को निकलो। दुल्हे के इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कमारियां उठकर उस 10 की 10 कुंवारियां अपनी अपनी मसले दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो। और बेवकूफों ने अक्लमंदों के साथ ये बात की कि अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। वजह ये कि हमारी मसलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। और अक्लमंदों ने ये कहा कि हो सकता है कि हमारे द्वारा दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ। बेहतर यह है कि मूल ले लो, जाकर बेचने वाले के पास जाकर मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा। जब वो लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली जो गई तैयार थी वो शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो और गया। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आई और जब दरवाजा बंद हो गया तो बाकी बेवकूफ कुंवारियां भी आई और कहने लगी ऐ खुदावंद ऐ और खुदावंद, पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल हमारे दे। लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त बादशाह या दुल्हा उन्हें कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बस तुम जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। पहले ही यीशु मसीह ने बता दिया था रसूलों को कि उस घड़ी और दिन को कोई नहीं जानता। रसूल भी नहीं जानते, फरिश्ते भी नहीं जानते, बेटे ने कहा बेटा भी नहीं जानता, बल्कि कौन जानता है? सिर्फ बात। सिर्फ बाप। बेटे को भी इल्म नहीं, फरिश्तों को भी इल्म नहीं, रसूलों को तो है ही नहीं। बाप ही नहीं कुल है, बाप को इस बात का इल्म है कि वो घड़ी वो दिन कब आएगा। आमीन। तो यीशु मसीह बार बार सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उस घड़ी और दिन का किसी को पता नहीं, इसलिए उस बादशाही के लिए, उस बादशाह में दाखिल होने के लिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखो, हमेशा तैयारी में रहो। आमीन। 2 ग्रुप हमने स्टडी की है, 5 बेवकूफों का है और 5 अक्लमंदों का। अक्लमंदों की अक्लमंदी यह है कि उनके पास सिर्फ मसले नहीं बल्कि उनकी कुप्पियों में तेल भी है। बेवकूफों की बेवकूफी यह है कि उनके पास मसले तो हैं लेकिन उनके पास तेल नहीं है। एक तेल ना होने के वजह से उनकी मसलें बुझ जाती हैं। जब उन्होंने मांगने की कोशिश की तो उनको नहीं मिला, और जवाब मिला कि जाकर खरीद कर ले आओ। जब मूल लेने जा रही थी तो उतनी देर तक दुल्हा आ पहुंचा। दुल्हा आ पहुंचा। मैं कुछ तर्जमे पढ़ रहा था, उसमें लिखा है, सुरानी तर्जुमों के अंदर है कि लिखा है कि दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आ पहुंचा। किसके साथ आ पहुंचा? दुल्हन के साथ। दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आ पहुंचा। और दोनों की तफसीरों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने घरों में। विलियम मैकडॉनल्ड ने इसकी तशरीह की है। दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आ पहुंचा। आप कहेंगे दुल्हन को तो दुल्हा लेने के लिए आ रहा है। रैप्चर के वक्त जब यीशु मसीह अपनी सेकंड आमद में आते हैं, जब यीशु मसीह आसमान पर अपने लोगों को ले जाने के लिए आते हैं, उस वक्त दुल्हन कलीसिया आसमान पर चली जाएगी। उस वक्त दुल्हन कलीसिया आसमान पर चली जाएगी और 7 साल तक आराम करेगी, वहां पर रहेगी। जब यीशु पहली दफा आया तो हमारे साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों खत पढ़े, उसका कुरिन्थियों का दूसरा खत है, उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहां पर उसने ये सिखाया है, काश कि तुम मेरी थोड़ी सी रसूल कहता है कुरिन्थस के लोगों को, काश तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त करते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। रसूल ने कहा, जब मैं सिखाता हूँ कई बातें सख्त होती है, कोई नरम होती है, कई बार सख्त होती है, तो बर्दाश्त तो करते हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा
खुदा की मुझे गैरत। तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी उसकी वजह यह है कि मैंने एक ही शौहर के साथ, कितने शौहरों के साथ? एक ही शौहर है। यीशु मसीह हमारा एक ही शौहर है, एक ही खुदा है और एक ही खुदावंद है। अगर जब बथेरे खुदावंद और बथेरे खुदा हैं, पौलुस रसूल ने कहा, लेकिन हमारा नजदीक तो एक ही खुदा है यानी बाप। हमारा नजदीक तो एक ही खुदा है यानी बाप, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह एक ही है, वो हमारा शौहर है। मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि पाक दामन कुंवारी की तरह मसीह के पास हाजिर कर सकूं। आमीन। हमारी एंगेजमेंट की गई है, हमारी मंगनी की गई है। और जब किसी लड़की की मंगनी हो जाती है, यहूदी रस्म और रिवाज के अंदर ये बात है कि जब मंगनी हो जाती है तो समझ लें कि वो मंगनी निकाह की तरह ही पक्की होती है, वो टूटने वाली नहीं होती। मंगनी किसी टेस्ट का नाम नहीं है। जिस तरह हमारे माशरे में मंगनी करके देख लो, फिर देखा कि चंगे लगे तो ठीक में तोड़ दिया गया। मंगनी टेस्ट का नाम नहीं। मंगनी तो दो खानदानों के वसीले से एक नया खानदान आबाद करने के लिए आदो पे माँ होता है, इसलिए इसको मामूली नहीं लेना चाहिए। जब लड़की की मंगनी हो जाती है तो लड़की अपने मंगेतर को शौहर की हैसियत से देखना शुरू कर देती है। यही वजह है कि जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ, यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो गई, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, फरिश्ते ने कहा अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से, ये नहीं कहा गया तो अपनी मंगेतर को अपने हाथ ले आने से न डर। इसका मतलब है जब मंगनी हो जाती है तो वो बीवी बन जाती है। आमीन। हमारी मंगनी खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो चुकी है, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, और इस एंगेजमेंट में उसने हमने उसे कबूल किया, उसने हमें कबूल किया है। जब हमने तौबा की, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा उसके नाम में लिया, यानी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ने उसे कबूल कर लिया, तो उसने भी रूह कुदुस का लिबास देकर हमें कबूल कर लिया। इसलिए उसने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। पाक रूह का लिबास जब मिलता है तो इसका मतलब है कि उसने हमें कबूल किया। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब है हमने उसे कबूल किया। और दरमियान में पलूस जैसे, अकलूस जैसे या खातून होते हैं जो एंगेजमेंट करवाते हैं, इनका बड़ा खास रोल है, यीशु मसीह के साथ आपकी एंगेजमेंट करवाते हैं। सो लिहाजा हमारी पलूस रसूल ने एक ही शौहर के साथ मंगनी की है, और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी वक्त आए और हमें साथ ले जाए। बरात किसी वक्त आएगी तो हमें साथ ले जाएगा। हम इस बात के मुंतजर हैं कि बरात आए, क्योंकि वो जाते हुए कह गया था मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा और फिर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं कहानी आपको सुनाता हूं। किसी फर्म के मालिक का लड़का जवान था और वो चाहता था कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, और उसने अपने फर्म के फोरमैन से बात की। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे लड़के की शादी कर दी जाए या मंगनी कर दी जाए। तो उसने कोशिश की कि मैं अपनी 5-6 लड़कियों के साथ उसकी शादी दिखाऊं कि किसी से शादी हो जाए। मालिक ने अपने लड़के को भेजा कि जाओ जरा चेक करके आओ लड़कियां। जब लड़कियां देखने के लिए गया तो लड़कियां बड़े स्टाइल में, बड़े फैशन में थी। उनका अपना फैशन था, यूरोपियन हेयर कटिंग थी, यूरोपियन लिबास था, बड़े फैशनेबल कपड़े थे। तो बादशाह का बेटा जब गया तो उसे देखा कि लिबास तो बहुत अच्छा है, हेयर कटिंग भी शायद बड़ी अच्छी है, लेकिन वो बादशाह के बेटे के म्यार की नहीं थी, फर्म के मालिक के बेटे के म्यार की ना निकली।
پانی میں یوں لکھا کہ جیسے ہی وہ مالک کا بیٹا جو ہے اس نے اپنا گھوڑا واپسی پر کیا تو اچانک ایک لڑکی نکلی جو بڑی سادہ مزاج تھی. وہ اپنے گھر کا کام کاج کرنے اور فالتو پانی باہر پھینکنے کے لیے جب نکلی تو اس نے دیکھا باہر ایک نوجوان گھوڑے پر ہے. تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یہاں پر کام کرتی ہوں. اس نے کہا I love you, میں تجھے پیار کرتا ہوں. اس نے کہا میں تو بڑی سادی سی ہوں اور میں پڑھ سی ہوں اور میں اتنی قابل نہیں ہوں. میں اتنی قابل نہیں ہوں. اس نے کہا نو پرابلم, اس کے باوجود میں تجھے پیار کرتا ہوں, I love you. اور اسے ایک سوٹ اسے دیا اور اسے اس کو پہن لیا. وہ روز اسے پہن کر انتظار کرتی. اس نے کیونکہ کیا کر کہتے میں جاؤں گا اور میں پھر آؤں گا اور میں تجھے بہت جلد اپنی بیوی بنا کر لے جاؤں گا, میں برات کے ساتھ آؤں گا, میں تجھے لے جاؤں گا. وہ روز انتظار کرتی, روز انتظار کر رہی تھی کہ کب آئے اور مجھے ساتھ لے جائے. لیکن جو یورپین اسٹائل کی لڑکیاں جن کو ریجیکٹ کیا گیا تھا, جو بڑی پڑھی لکھی تھی, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی, وہ روز اسے چھیڑتی تھی, کہتی تھی نہیں وہ نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے گا. لیکن وہ روز کہتی نہیں, اس نے وعدہ کیا ہے. یہ لیکن سوٹ دے کر گیا مجھے, وہ آئے گا اور مجھے ساتھ لے جائے گا. بالکل اسی طرح ہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس نے سادہ مزاج لوگوں کو پسند کر لیا ہے, سادہ عام لوگوں کو پسند کیا ہے. عام لوگ جو ہیں, جو سادہ مزاج ہیں, جو شاید بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں, شاید بہت زیادہ ان کا علم نہیں ہے, لیکن تو بھی رام یسوع مسیح نے کہتا ہے I love you, میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں اور پھر آؤں گا اور پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. پولس رسول نے تسلیکے کی کلیسیا کو لکھا, اسے کہا کہ ہم خداوند یسوع کے یعنی خدا کے بیٹے کے آنے کے منتظر ہیں. تسلیکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں. تسلیکے کی کلیسیا کو اس نے خط لکھا, 3 باب ہے, اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں. اور اخیاق اور مقدونیہ کے لوگ جو ہیں تسلیکے کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا, تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا, اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے. یعنی تسلیکے کے لوگ بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہیں تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی تاکہ کریں, زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کریں, اور اس کے بیٹے کے آسمان پر اور اس کے بیٹے کے آسمان سے آنے کے منتظر رہو, جسے اس نے یعنی خدا نے مردوں میں سے جلایا, جسے اس کو یعنی خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا, یعنی یسوع کے جو یعنی یسوع مسیح کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. ہاللویا. ہم اس کے منتظر ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں ساتھ لے کر چلا جائے گا. دلہن اپنے دلہن کے ساتھ آسمان پر چلی جائے گی. اس کے لیے پولس رسول نے تسلیکے کی کلیسیا کو خط لکھا, پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے ہیں, پہلے تو وہ جو کیونکہ خداوند خود آسمان, کیونکہ خداوند یسوع کی بات ہو رہی ہے, خداوند یسوع مسیح کی, کیونکہ خداوند خود للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز, مقرر فرشتے کی آواز, اور خدا کے نرسندے اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. اور پہلے تو وہ مسیح میں ہوئے ہیں, جس میں ہوئے ہیں مسیح میں ہوئے, وہ جی اٹھیں گے, اور پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, تاکہ ہوا میں خدا ان کا استقبال کریں اور اس طرح اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں. یہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے, یہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے, جس میں ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے. کئی بار آمد ثانی کو اور آمد ثلاثہ کو گھٹ بٹ کر دیتے ہیں.
تو کئی بار باتوں کی سمجھ نہیں آتی، کئی بار ہم پوشیدہ آمد کو اور ظاہری آمد کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں کلیسا کو آتی۔ اس لیے میں ریپچر کو جب یسوع مسیح آئے گا اور ہمارے اڑ کر ہم استقبال کریں گے، اس کو دوسری آمد سے منسوب کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ دوسری آمد میں کلیسیا دلہن جو ہے اپنے دلہن کے ساتھ ہوا اڑ کر اس کا استقبال کرے گی۔ آمین۔ تیسری آمد میں، تیسری آمد کب ہوگی؟ 7 سال کے بعد تیسری آمد ہوگی۔ کتنے سال کے بعد؟ کلیسیا آسمان پر اٹھائی جاتی ہے، کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے گا لیکن 7 سال بعد، کیونکہ 7 سال مصیبت کا پیریڈ ہے، مصیبت کا دور ہے، یہ گیپ پیریڈ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد 70واں ہفتہ شروع ہو جائے گا جو 7 سالوں پر مشتمل ہے، اور اس کے میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس کے 2 حصے ہیں، 3.5 سال اور 3.5 سال۔ تو یہ 7 سال جو ہیں یہ کلیسیا دلہن آسمان پر آرام کرے گی، لیکن زمین پر یعقوب کی بڑی مصیبت کا آغاز ہوگا، زمین پر بڑی مصیبت ہوگی اور زمین پر بڑے دشواری میں لوگ گزر رہے ہوں گے، اور اس کے اختتام میں، یعنی 7 سال کے اختتام میں خداوند بادشاہ بن کر آتا ہے۔ کیا بن کر آتا ہے؟ بادشاہ بن کر آتا ہے۔ دلہاؤں تمہیں ساتھ لے گیا، دلہن کو جب بادشاہ واپس آتا ہے اپنی دلہن کو لے کر تو جشن کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جشن کرتا ہے، ولیمہ کرتا ہے، منگنی ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ ہوتا ہے۔ 3 سیشن ہوتے ہیں تقریباً ہماری شادیوں میں، اور یہودیوں میں بھی یہی ہے، منگنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ ہوتا ہے۔ آمین۔ ہمیں جب ساتھ لے کر گیا، پہلے زمین پر آیا اور ہمارے ساتھ منگنی کر کے گیا، پھر ہمیں ساتھ لے گیا تو ہماری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، اور اب 1000 سال بعد سے میں ولیمہ ہوگا، جشن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جشن ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب کو میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے بیشتر کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کہہ رہا ہوں کہ خداوند کی دلہن جو ہے، یسوع مسیح کی دلہن 1000 سال بعد سے اس کے ساتھ ہوگی۔ جشن منانے کے لیے نہیں دلہن ہوگی، بلکہ لوگ اس کا استقبال کریں گے۔ یہ 10 کماریاں جو ہیں، ان میں سے 5 جو عقل مند ہیں، یہ جشن میں داخل ہوئی ہیں۔ کس میں داخل ہوئی ہیں؟ جشن میں داخل ہوئی ہیں۔ 5 بیوقوف جو ان کے لیے جشن کا دروازہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے، لیکن 5 کے لیے کھلا تھا۔ 5 تیار تھی، یعنی آسمان کی بادشاہی کے لیے اس جشن میں داخل ہونے کے لیے 5 تیار تھی، لیکن 5 بیوقوف تھی، تیاری نہ کی تھی، ان کے لیے بادشاہی کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ لیکن 5 جو عقل مند تھے ان کے لیے دروازہ کھل گیا۔ اس میں بادشاہ اپنی دلہن کے ساتھ آیا ہے جشن میں۔ کس میں آیا ہے؟ جشن میں۔ اب لوکا کی تسلیقوں کا خط میں ساتھ نکالیں، تسلیقوں کا خط ہے اور اس کا 3را باب اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ 3را باب اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تسلیقوں کا پہلا خط ہے، اس کا 3را باب 11ویں آیت۔ اب ہمارا خدا اور باپ، اب ہمارا خدا اور باپ، خود اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف، خود ہمارا خداوند یسوع مسیح تمہاری طرف کیا کرے؟ راہبری کرے۔ اور خداوند ایسا کرے، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے، جس طرح پولس رسول کو تسلیقے کے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں، اس طرح تسلیقے کے لوگوں کی محبت بھی آپس میں بڑھتی جائے، اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ اور یہ زیادہ بھی ہوتی جائے، بڑھتی بھی جائے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط تاکہ کرے خدا تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع غور کریں، جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ اپنے آئے سب مقدسوں یعنی اپنی دلہن کے ساتھ آئے، تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پھر ہم مقدس لوگ جو دلہن جو ہے خدا باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ اس کا مطلب ہے جب خدا یسوع آئے گا
मुकद्दसीन साथ आएंगे। मसीही लोग, दुल्हन कलीसिया, मुकद्दसीन ये वो है जो मसीह कहलाते, यहूदी नहीं। याद रख लें, ये यहूदियों की बात नहीं हो रही, बल्कि उनकी बात हो रही है जो मसीह कहलाते हैं। जो मसीह कहलाते हैं वो ना यूनानी रहे ना यहूदी रहे, बल्कि सब मसीह में क्या हो गए, एक हो जाते हैं। जो मसीह कहलाते हैं वो यहूदी नहीं कहलाते। आमीन। जो मसीह में आ जाते हैं फिर वो यहूदी नहीं कहलाते। इसका अर्थ को हम पढ़ सकते हैं, गलतियों के खत को पढ़ी, गलतियों का खत है, शाबाश, तीसरा बाब है, तीसरा बाब, और उसकी मैं पढ़ता हूं आपके सामने 27वीं आयत में लिखा है, पास तुम जब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा, मसीह में शामिल होने का वक्त, किसमें शामिल होने का, मसीह में शामिल, मसीह में शामिल जब लोग हो जाते हैं, बपतिस्मा से मसीह को क्या करते हैं, पहन लेते हैं। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, और फिर ना कोई यहूदी रहता है ना कोई यूनानी रहता है, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई गुलाम रहता है ना कोई आजाद रहता है, ना कोई मर्द ना ना औरत, कोई मर्द ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में क्या हो गए हो, एक हो गए हो। इसका मतलब यह है कि हम आसमान की बादशाही में मुनफरद लोग होंगे। आमीन। हम आसमान की बादशाही में मुनफरद लोग होंगे। तो हम यहूदी नहीं कहलाएंगे, यूनानी नहीं कहलाएंगे, बल्कि हम मसीह हैं। क्या है, हम मसीह ही हैं। मसीह की वजह से हम मसीह हैं, मसीह की वजह से हम मसीह ही हैं, क्राइस्ट की वजह से हम क्रिश्चियन हैं। आमीन। सो मसीह मुकद्दसों की जमात है ये। जो जब खुदा यीशु आएगा तो कौन सी जमात, मुकद्दसों की जमात, जो मसीह को जिन्होंने कबूल किया, जिन्होंने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने उसके नाम में शामिल होने का बपतिस्मा ले लिया, वो यहूदी हो या यूनानी हो मसीह कहलाएंगे। आमीन। यहूदी हो या यूनानी हो वो क्या कहलाएंगे, मसीह ही कहलाएंगे। 3000 लोगों ने जब बपतिस्मा लिया तो वो यहूदी नहीं कहलाते थे, फिर वो मसीह ईमानदार कहलाते थे। बल्कि वो अपने आप को कभी उन्होंने कहा कि हम यहूदी है, बल्कि वो अपने को मसीह ही कहलाते थे। आमीन। लेकिन ताकि हमें पहली दफा लोग क्या कहलाए, मसीह ही कहलाए, यहूदी नहीं कहलाए थे, बल्कि मसीह कहलाए थे। सो मसीह में शामिल होने का जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लेने के सबब से वो लोग मसीह कहलाते हैं। और जब खुदा यीशु मसीह वापस आएगा 7 साल के बाद, तीसरी उसकी आमद होगी, जब उसकी तीसरी आमद होगी, आमद सलासा होगी, तो ये मुकद्दसीन यीशु मसीह के क्या होंगे, साथ होंगे। आमीन। दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आ पहुंचा, दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आ पहुंचेगा। आमीन। यानी 1000 साल बादशाही को आगाज करने के लिए वहां पर आएगा। और यहाँ पर एक ज़ियाफत है पहले, और क्या है, यहाँ पर एक ज़ियाफत, जश्न है, यहाँ पर जश्न होगा। और इस जश्न के अंदर वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने 7 साल मुसीबत के दौरान मसीह यीशु को कबूल कर लिया। आमीन। जिन्होंने 7 साल मुसीबत के नाम में खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, बर्रे के पीछे पीछे उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। मसीह यीशु को रद्द नहीं किया, बल्कि मसीह यीशु को कबूल कर लिया है। आमीन। एक बार 7 आयत निकालें, मत्ती की इंजील है और उसका 8वां बाब, उसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं और 10वीं को पढ़ कर आएंगे। हाँ जी, यीशु ने यहाँ पर एक बात कही। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। ये एक शख्स है, सूबेदार है, ऐसा ईमान उसने इस्राएल में भी नहीं पाया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर, हाँ, यीशु मसीह ने मजीद बात खोली रसूलों के सामने, बतेरे पूरब से पश्चिम में आकर, पश्चिम और पूरब से आकर अब्राहम और पश्चिम और पूरब से आकर इब्राहिम
इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में आसमान की बादशाह की ज़ियाफत में शरीक, जश्न में आएंगे। आसमान की बादशाह की ज़ियाफत में शरीक होंगे, जश्न मनाएंगे, खाना खाएंगे, वलीमे में शामिल होंगे। कहाँ से आएंगे? पूरब और पश्चिम से। तेरे पूरब और पश्चिम से आएंगे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाह की ज़ियाफत में शरीक होंगे। लेकिन मगर बादशाही के बेटे बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। बादशाही के बेटे कौन? बादशाही के बेटे, जिनको बादशाही में होना चाहिए था। यहूदियों को यीशु मसीह को कबूल करने के सबब आसमान की बादशाही में होना चाहिए था, लेकिन ये बादशाही से क्या होंगे? बाहर होंगे। लेकिन डाकू जरूर होगा। डाकू उस बादशाही में होगा जिसने कहा था, यीशु जब तो बड़ी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। वो इस ज़ियाफत में शरीक होगा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब भी जिंदा होकर इस ज़ियाफत में शरीक होंगे। आमीन। इस वलीमे में, जश्न में, इस जश्न के अंदर इब्राहिम, इसहाक, याकूब और पूरब और पश्चिम से भी लोग, गैर गवाम के लोग और बहुत सारी कौमें यीशु मसीह को कबूल करने के सबब इस जश्न में क्या हो जाएंगी? दाखिल हो जाएंगी, क्योंकि वो तैयार थे। लेकिन बेवकूफ तैयार नहीं होते, अक्लमंद तैयार होते हैं। अक्लमंद बादशाह के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। इसलिए तो बार बार यीशु मसीह ये कहता है कि तौबा करो किस बात की बादशाही। इसलिए तो निकोदेमुस को उसने कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो उस्मान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो खुदा यीशु मसीह चाहता है कि उसकी 1000 साल बादशाही में लोग शामिल हो जाएं, उसके जश्न में शामिल हो जाएं। ये 5 गवारियां अक्लमंद जो थी, इनके पास तैयारी थी, पाकरू की ममूरी थी, ये दाखिल हो गई। लेकिन जो तैयार नहीं थी वो खटखटाती रही कि हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। लेकिन अब फरमाने अल्लाह ही ये है, आवाज़ है मालिक की कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने एक दफ़ा लूका की इंजील उसका 13 बाब में हिस्सा निकाले, 28वीं आयत को पढ़ते हैं। लूका की इंजील उसका 28वां बाब, 13 बाब उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने बात की, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। थोड़ा आगे चलते जाएं, ऊपर पढ़ते हैं। एक सेकंड, मैं बताता हूँ कहाँ शुरू करते हैं। Praise God। और किसी शख्स ने उससे पूछा है, खुदावन क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? 23 आयत को पढ़ते हैं ना। किसी शख्स ने यीशु मसीह से पूछा, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जान फिशानी करो। यीशु मसीह ने कहा, जान फिशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तेरे दाखिल होने की कोशिश, तेरे इस तंग दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सके, लेकिन ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका जब हो। घर का मालिक, यीशु मसीह घर का मालिक है। यीशु मसीह के घर का मालिक है। वो खुदा के घर का मुख्तार है। वो खुदा के घर का क्या है? मुख्तार है। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? मुख्तार है, मालिक है। आमीन। अंबिया जो है या मूसा जो तो नौकर थे, वो क्या थे? वो नौकर थे, खातम थे। अब पढ़कर देखें, इब्रानियों 3 बाब की पहली आयत को पढ़कर देखें। वहां पर मूसा की बाबत लिखा है कि वो खुदा के घर में क्या था? नौकर था। बस है भाइयों, और रसूल कहता है, भाइयों तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक, किसमें शरीक हो? आसमानी बुलावे। हम जिस्मानी बुलावे में शरीक नहीं, हम तो आसमानी बुलावे में शरीक हैं। उस रसूल और सरदार का है, उस रसूल और सरदार का यीशु पर गौर। उस रसूल इन रसूल भी बना करो। आमीन। जहाँ वो नबी है वहाँ पर रसूल भी है, जहाँ पर वो खुदावंद है वहाँ पर खुदावंदों का खुदावंद है, जहाँ पर वो बादशाह है वहाँ पर बादशाहों का बादशाह है। उस रसूल
और सरदार काहिन और यीशु सरदार कहन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते उसका हैं, हम इकरार करते हैं। जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में ध्यानदार, वो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में क्या था? ध्यानदार था। जिस तरह मूसा उसके सारे घर में जिस था, तरह मूसा उसके सारे घर में ध्यानदार था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लेकिन लायक, यीशु मसीह की बात यह है कि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक ठहरा, जिस कदर घर का बनाने जिसका वाला, घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जत के लायक ठहरता है। चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, आप पढ़ते जाएं, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में मूसा, ये खास बात, मूसा तो उसके घर में क्या था? उसके सारे घर में खादिम की तरह, उसके सारे घर में खादम था, खादिम की तरह ध्यानदार था, खादम की तरह ध्यानदार था, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। ताकि आइंदा होने वाली बातों की गवाही दे। रही बात बेटे की, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार लेकिन है। बेटा उसके बेटा यीशु मसीह जो है उसके घर का क्या है? बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है, हाँ, बेटे की तरह उसके घर का क्या है? मुख्तार है, मुख्तार है। और उसका घर हम है। उसका घर हम है। आमीन। बेटा कौन है? मुख्तार है। बेटा मालिक है। इसलिए भी उसने कहा कि जब क्या होगा, वो मालिक क्या करेगा? दरवाजा उठ कर क्या करेगा? बंद कर देगा। मालिक उठकर दरवाजा क्या कर चुका होगा? बंद कर चुका बंद। हो। पढ़िए फिर उसको इस तरह ही। और जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो उस जिस वक्त मालिक घर का दरवाजा बंद कर चुका होगा, और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो और तो उस वक्त दरवाजा खटखटा कर कहना शुरू करोगे कि ऐ खुदावन हमारे लिए खोल दे, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं वो जानता, कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, कि कहाँ के हो। मैं तो तुम्हें नहीं जानता कहाँ के हो। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे, उस वक्त ये कहना लोग शुरू करेंगे, हमने तो तेरे रूबरू खाया हमने पिया, तो तेरे रूबरू खाया पिया था, हमने हमारे बाजारों में तालीम दी। हमारे बाजारों में तालीम भी देता रहा, हमारे बाजारों में तालीम भी तो देता रहा। ये उससे कोई यहूदी कहेंगे तो उस वक्त हमारे बाजारों में तालीम भी देता भी रहा, हमारे साथ खाता पीता भी था। लेकिन उस वक्त पर ये क्या कह देते? शराबी, काऊ, पढ़ाऊ, पाल जबूर, न जाने क्या क्या लकब देते थे। उस वक्त कहना शुरू करेंगे कि तूने हमारे रूबरू खाया पिया, हमारे रूबरू खाया पिया, और तूने हमारे बाजारों हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ उस वक्त मालिक कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तो मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो तुम ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर चले जाओ। वहाँ रोना और दांत और वहाँ रोना का दांत पीसना होगा। जब तुम अब्राहम इसहाक और और याकूब जब तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब को सब नबियों को खुदा और सब नबियों को आसमान की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर और निकालो, अपने को बाहर निकला हुआ पाओगे। यहूदियों, तुम अपने को बाहर निकला हुआ पाओगे, हालांकि तुम बड़ा फख्र करते हो कि बड़ा हमारा बाप है। इसी वजह से पत्र पर यूहन्ना ने कहा था फख्र न करो, इब्राहिम, खुदा इब्राहिम के पत्रों से औलाद पैदा कर सकते हैं। फख्र ना करो, इब्राहिम हमारा बाप है। शायद इब्राहिम की वजह से हम आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। मैं तुझे सच कहता हूँ कि इब्राहिम के लिए खुदा इन पत्थरों से औलाद पैदा उतनी देर तक नहीं दाखिल हो सकते जितनी देर तक तुम्हारे इब्राहिम जैसा ईमान नहीं। इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहरा था, तुम अमाल से रास्तबाज ठहरना चाहते हो। इब्राहिम ईमान की रास्तबाजी की पैरवी करता था, ईमान की शरीयत पर चलता था, तुम ईमान की शरीयत पर चलने वाले हो। अब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और तमाम नबियों को किसमें देखोगे? आसमान की बादशाही में। और जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल आसमान की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकालो बाहर देखोगे, और पूर्व और पश्चिम और उत्तर पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आएंगे। लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में, उस जश्न में दाखिल हो जाएंगे। देखो बाज आखिर है ऐसे और बाज देखो जो आखिर है वो क्या हो जाएंगे? अव्वल हो और जाएंगे। बाज अव्वल है और बाज जो अव्वल है वो क्या हो जाएंगे? आखिर। इसराइली बेशक अव्वल थे, लेकिन क्या हो गए? आखिर हो गए। यीशु मसीह को रद्द करने के सबब से क्या हो गए? आखिर हो गए। गैर कवाम हम लोग जो थे, जिनको यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं, हम क्या हो गए?
ईमान के सबब से हम अव्वल हो गए, हम उस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आमीन। जितने लोग उसमें शामिल हो जाएंगे वो उस जश्न में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस जश्न में क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। ये जश्न होने वाला है 7 साल कलीसिया के उठाए जाने के बाद, 7 साल के बाद एक जश्न होगा। निकाले में से मुकाशवा किताब उसका 19 बाब। 7वीं आयत, आओ हम खुशी करें आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और बड़े शादमान हो और जाएं उसकी तमजीद करें, और उसकी तमजीद करना शुरू करें। इसलिए कि बर्रा की शादी आप वजह क्या है? इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर दिया। ये हमारी बात हो रही है। आमीन। ये हमारी बात हो रही है। उसकी बीवी ने अपने को तैयार कर लिया है। और उसको चमकदार, उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया है। क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोग, ये रास्तबाजी के काम मुराद है। महीन कतानी कपड़ों से मुराद मुकद्दस लोगों की, रास्तबाजी के काम। ये मुकद्दस लोग हम हैं। आमीन। आमीन। ये मुकद्दसों की जमात हम हैं। इनको साफ महीन कतानी कपड़े पहनने का क्या दिया गया है? इख्तियार दिया गया। आगे क्या लिखा है? और उसने मुझसे कहा कि लिख, और फिर उसने कहा लिख मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त बर्रे में की बुलाए शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा ये खुदा की सच्ची बातें हैं। हालेलुया। वो मुबारक है जो बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। जिन लोगों ने इस बलाहट को रद्द किया है, इस बलाहट की कुछ कदर नहीं की, वहाँ पर उनके रोना और दांतों का पीसना होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बलाहट है कि लोग उस्मान की बादशाह की ज़ियाफ़त में आ जाए। आमीन। बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में लोगों को बुलाया जाए। यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है दूसरी आमद में, सेकंड आमद में। तीसरी आमद में कलीसिया दुल्हन उसके क्या होगी? साथ होगी। यहूदी जिन्होंने इस बलाहट की नाकदरी की है, इस बलाहट को नचीज जाना है, वो बड़े अजाब में पड़ेंगे। मत्ती की जिसका लूका, मत्ती की जिसका 22वां को पढ़कर देखें, उसकी पहली आयत में कुछ लिखा है। मत्ती की उसका 22वां, उसकी पहली आयत में यीशु मसीह ने तमसील कही। यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, यीशु मसीह ने फिर आसमान की बादशाही की ओर तमसील कही है। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी, जिसने अपने बेटे की शादी की है और अपने नौकरों को भेजा के बुलाए हुओं को शादी में बुलाया और है। उसने अपने नौकरों को यानी खुदा के खादमों को भेजा कि बुलाए हुओं को जाकर बुलाया लाए, सद्दा भी हो आ जाओ, मगर उन्होंने आना न चाहा। लेकिन बुलाए हुए ने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये फिर कहकर उसने और नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार वो कर ली देखो है। भाई मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर लिया, आ जाओ। मेरे बैल और मोटे मोटे बैल और मोटे मोटे बैल ज़िबा हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। वो शादी में आ जाओ भाई। मगर वो बेपरवाही कर, लेकिन वो लापरवाह बेपरवाही करके चल दिए। कोई अपने खेत कोई अपने खेत को, कोई अपनी सुधारगरी को, कोई अपनी सुदागरी को, और बाकी ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया। बाकी ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया जो उस्मान की बादशाही की बनाती करते थे, मार डाला। उनको मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ। बादशाह क्या हुआ? गजबनाक हुआ। उसने अपना लश्कर भेजकर उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला और दिया। उनका शहर तीतस जनरल के वसीले जला दिया। जनरल तीतस के वसीले उनका शहर क्या कर दिया? जला डाला। जला दिया और आने वाले वक्त में फिर जलाएगा। और क्या है? अब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, ओ, फिर उसने कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक नहीं। बस रास्तों के नाकों पर जाओ फिर रास्ते के नाकों में चले जाओ, और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लो। जितने भी मिलते हैं उनको सबको शादी का सद्दा दे रहे हो, आज हो गए जश्न में। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाओ, बाहर रास्तों में गए, जो मिले क्या बुरे क्या भले सब जमा कर डाले। सबको जमा करके ले आए कि और भी शादी में और खाओ शादी की पियो। महफिल मेहमानों से और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर हाँ, आया, जब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए अंदर आया, उसने वहाँ एक आदमी को देखा। एक बंदा कभी शादी की पोशाक पहने हुए नहीं था। उसने उससे कहा मियाँ तू शादी वो मियाँ तू शादी की पोशाक पहने हुए क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह फिर उसका क्या हो गया? मुंह बंद हो गया। बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा कि उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में और डाल उसके दो। बाद उस जो
इसकी पोशाक नहीं जिसके पास को बांध कर अंधेरे में डाल दिया गया। वहाँ रोना और दांत पिसना। यहाँ रोना और दांतों का, उनके बुलाए हुए बहुत हैं, उनके बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगजीदा थोड़े। बरगजीदा क्या है? थोड़े हैं। बुलाए वो सत्ता सारे हम देता है, पूरी इस्राएल को बुलाया है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं। उन्होंने बादशाह की परवाह नहीं की है, बादशाह को कुछ नहीं समझा। आमीन। इसलिए जिन्होंने बादशाह को कुछ नहीं समझा वो लोग बड़े बुरान का शिकार होंगे, वो बड़ी मुसीबत का शिकार होंगे। उनके लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन वो तेरे पूरब से पश्चिम से आएंगे और इस जश्न के अंदर क्या हो जाएंगे? ज़ियाफ़त में क्या हो जाएंगे? शरीक हो जाएंगे। हम अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि उसने गैर कौमों में से हमको बुलाया है, और सिर्फ बुलाया नहीं बल्कि अपनी दुल्हन बुला दिया। आमीन। हमें दूसरी आमद में लेने के लिए आ रहा है। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, गुनाहों की माफ़ी का बपतिस्मा नहीं लिया, पाकरू को नहीं पाया, अभी तक उसको कबूल नहीं किया और उसने तुम्हें कबूल नहीं किया, तो ये कबूलियत का वक्त अभी टाइम है। पानी का बपतिस्मा लेकर तौबा करो, गुनाहों की माफ़ी का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर उसे कबूल कर लो, और वो पाकरू का लिबास लेकर आपको कबूल कर लेगा। इससे पेशतर के जश्न का ज़माना आए, 1000 साल बाद का ज़माना, पहले तो आपको दुल्हन बनाकर ले जाएगा, पहले आपको दुल्हन बनाकर ले जाएगा। फिर बाकी जो रह जाएंगे 7 साल मुसीबत के दौर में, जो रह जाएंगे और परफेक्ट रहेंगे और जो खुदा यीशु पर ईमान रखेंगे और उसकी बादशाह को कबूल करेंगे, उसे बादशाह तस्लीम कर लेंगे, अपने को प्रिपेयर करेंगे ज़ियाफ़त में आने के लिए, वो उनके लिए भी गुंजाइश होगी कि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ उस ज़ियाफ़त में शरीक हो जाएं। लेकिन बादशाह के बेटे बाहर क्या डाले जाएंगे? अंधेरे में डाले जाएंगे। हमें यहूदियों के लिए पैगाम है कि वो अभी वक्त है कि यीशु मसीह को कबूल कर लें। अगर उन्होंने कबूल ना किया तो यीशु मसीह के बकौल वो बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं खुदा के हुजूर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आसमानी बाप, हमें अपने बेटे की बादशाही के लिए तैयार कर, ताकि जब तेरा बेटा 1000 साल बादशाही पर तख्त नशीन हो, जब वो तख्त पर बैठे तो अपने वादे के मुताबिक 12 तख्तों पर बैठकर हम भी 12 कबीलों का इंसाफ करने वाले थे। आसमानी बाप, बरकत दे ताकि हम तेरे खुदा तेरी बादशाही में दाखिल होने वाले बने। और मैं चाहता हूँ इससे बेशतर के हम बादशाही में जाएं। पहले हम तेरे साथ, तेरे बेटे के साथ आसमान पर उठाए जाएं। हम तेरे बेटे की आमद के मुंतजर हैं कि जब वो आए हम हवा उठकर उसका इस्तकबाल करें। अपने बेटे की आमद के लिए तैयार कर। ऐसा ही कर बाबा। हमारे दाग धब्बे चुरियां खत्म कर दे, ऐसी जलाल वाली कलीसिया बना दे इसमें दाग धब्बा न चुरी हो बल्कि सरासर पार। हमें कलाम से गुस्ल दिया जाए ताकि कलाम के गुस्ल के वसीले हर दाग धब्बा चुरी खत्म हो जाए और जलाल वाली कलीसिया बनाकर हम मसीह के सामने हाजिर किए जाए। आसमानी बाप, हमें बरकत दे, अपने जलाल का इस्तेमाल। जितने लोग ने तेरे कलाम को सुना है वो सब इस कलाम से मुस्तफीज हो, इस कलाम से बरकत पाए। कल हम फिर इस जगह पर आकर तेरा जिंदा कलाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग तेरे कलाम से फैज़ जाओ। हर मुकद्दस भाई, हर बेटी बहन जो ऑनलाइन है और तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने बच्चों में बैठे हैं ताकि तेरा कलाम सुने, उन सबको बरकत दे, उनकी जिंदगियों को मुनव्वर कर ताकि
कि खुदा तेरे बेटे की आमद के लिए हर वक्त तैयार है। तेरा शुक्र अदा करते हैं, जब तू आए तो बड़े खुदा हम तेरे लायक कर दे। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आमीन।